Hello friends, VK classes welcomes you. I am Vikas Saini and today I will teach you the conditional sentences of past tense. Friends, it is a very important topic for your academic examinations and all types of competitive examinations. Watch the video till the end and if you like the video, please share and subscribe the channel. Okay? Comes to the point, let us discuss about today's topic. The topic of today is conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस को हिंदी में शर्तसूचक वाक्य कहते हैं। शर्तसूचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं तो उनके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है और अब ये पास्ट इंडेफिनिट में जिस तरीके से इनका यूज किया जाता है उसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसका जब पास्ट इंडेफिनिट का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंडीशन को शो करने के लिए हमारे पास एक मॉडल होता है वुड एंड वुड है। देयर आर टू मॉडल्स, would or would have, to express the sense of condition in past indefinite tense, and it is compulsory that if there is a condition in the sentence, the sentence should be in past tense and it may be in past indefinite or it may be in past perfect sentence. Okay, point to be noted, if there is the condition of past tense, the sentence may be in past indefinite tense and the sentence may be in past perfect tense. And if there is not the sentence in past tense, then the conditional condition may not be shown by the sentence. यानी अगर sentence में condition है, past tense से related है, तो sentence है तो past indefinite में होगा, past perfect में होगा। ये point आप लोग note कर लीजिएगा। If there is the sentence in past continuous tense, past perfect continuous tense, it may be the sentence is wrong. तो कभी भी condition जो है past continuous tense के साथ नहीं आएगी, past perfect continuous tense के साथ नहीं आएगी। condition हमेशा past indefinite में आएगी या past perfect में आएगी। और condition को show करने के लिए हमारे पास दो models होते हैं, एक होता है would, एक होता है would have. I have told about these models in my previous video topic model. इनके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया है। would का यूज कहाँ करते हैं, would have का यूज कहाँ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, would का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैबिचुअल सेक्शंस को शो करने के लिए भी किया जाता है और would का प्रयोग पास्ट टेंस में कंडीशन को शो करने के लिए भी किया जाता है। कंडीशन का पता कैसे चलता है कि इस सेंटेंस में कंडीशन है और इस सेंटेंस में हैबिट है? तो कंडीशन का जो पता लगता है जब सेंटेंस का आधा भाग दूसरे भाग के ऊपर डिपेंड होता है। It means we can say that in complex sentences the conditional sentences comes, यानी जो complex sentences होते हैं उन्हीं के अंतर्गत आपका conditional sentences आता है। Whenever the half part, or we can say that the one clause depends upon the another clause, यानी कि जब एक clause sentence के दूसरे clause के ऊपर डिपेंड रहती है तब उस sentence में हम condition को मानते हैं। और हैबिट का मीन्स होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को पर्टिकुलर करना शुरू कर देता है, डेली रूटीन में प्रोसेस में ले आता है, तो उसको बोलते हैं हैबिट। तो देखिए जैसे एक सेंटेंस है, इफ आई वर रिच आई वुड बाय ए न्यू कार। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस में दो क्लोजेस दी गई है। देयर आर टू क्लोजेस इन ए सेंटेंस, इट इज वन क्लॉज एंड इट इज सेकंड क्लॉज। And friends, you should have knowledge about the types of clauses and you should have knowledge about also which type of clauses are there, यानी कौन कौन से प्रकार की clauses हैं। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि find the clause and there are three types of clauses: subordinate clause, principal clause, coordinate clause. I will teach you about the topic of clause in my next video. Wait for them. And today देखिए एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है। इसमें एक क्लोज दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड है, यानी उसने कहा कि इफ आई वर रिच, यदि मैं धनी होता, आई वुड बाय ए न्यू कार, मैं एक नई कार खरीद लेता। यानी कि ये सेंटेंस, ये क्लोज आपका प्रिंसिपल क्लोज हुआ। प्रिंसिपल क्लोज मींस द क्लोज इज फ्री इन इटसेल्फ, यानी कि जो अपने आप में स्वतंत्र होता है,
फ्री होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और जो दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही आपका कंडीशनल सेंटेंसेस आता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो आप मीनिंग के अकॉर्डिंग निकाल लें, उसने कहा मैं एक कार खरीद लेता, ये स्वतंत्र है, अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट है। बट इफ आई वर रिच, यदि मैं धनी होता, इट मींस ये अधूरा है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो जो भाग दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड द पार्ट व्हिच इज फ्री इन इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। अगर आप ऐसे भी याद नहीं रख सकते अकॉर्डिंग द डेफिनेशन, you should remember that if the part of the sentence start by if, when, after, before, until, unless, as soon as long as, it is called subordinate clause, means conditional part। यानी कि जो भाग सेंटेंस का if, when, after, before, until, unless, as soon as long as if, in case, इन शब्दों से शुरू होता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको हम कंडीशनल पार्ट कहते हैं। तो जब कंडीशनल पार्ट की ये विशेषता है कि आधा भाग दूसरे भाग के ऊपर डिपेंड होगा तो वो कंडीशनल कहलाया जाएगा। फिर बात करते हैं कि कंडीशन को कैसे शो करते हैं। देखिए हमेशा जब भी सेंटेंस में कंडीशन होगी तो वो पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड होगा। जैसे सेंटेंस दिया इफ आई वर रिच, वॉज और वर का यूज हम कहां करते हैं? वॉज और वर का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इट मींस वी यूज वॉज और वर इन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, अगर सबऑर्डिनेट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो फिर प्रिंसिपल क्लॉज में यूज किया जाएगा वुड। यू शुड रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट हैज कम many times in previous types of exams। okay, तो अगर उसका सबऑर्डिनेट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज में यूज करते हैं वुड। बट इन नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया इफ आई हैड रिच। अब ये जो सबऑर्डिनेट पार्ट है ये भी सबऑर्डिनेट पार्ट इसलिए बिकॉज ये इफ से शुरू हुआ है, और ये भी हमारे इस सेंटेंस के जो क्लॉज दिया गया है सेकंड क्लॉज इसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर सबऑर्डिनेट पार्ट पास्ट परफेक्ट में है तो फिर हम क्या यूज करेंगे उसके साथ? वुड है। ओके, इट शुड रिमेंबर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इससे रिलेटेड एरर कई बार आ चुकी है। अगर सबऑर्डिनेट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है तो प्रिंसिपल में हम क्या यूज करेंगे? वुड। और अगर सबऑर्डिनेट पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसके साथ यूज करेंगे हम वुड है। फिर जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप ये समझते हैं कि वॉज वर का यूज सिंपल पास्ट में कैसे होता है या पास्ट इंडेफिनिट में कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा एग्जांपल में मैंने लिखा है इफ ही हियर्ड द न्यूज। हियर्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो दिस क्लॉज इन past indefinite tense and it is also subordinate clause। okay, then the part of subordinate clause in past indefinite tense, and if this is in past indefinite tense और यहाँ पे हमने would have का यूज कर दिया है principal clause में, it means there is an error and there should not be used have with would, there should be only would with past indefinite tense। okay, अगर लेकिन पास्ट परफेक्ट होता तो उसके साथ हम क्या यूज करते? वुड हैव। और अगर केवल पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर क्या यूज करेंगे? हम वुड का यूज करेंगे। अगर ये उसमें पेपर में आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है इफ ही वाज गोइंग, he would have caught the train। सपोज दैट इस तरीके से कोई एग्जांपल दिया हुआ है और यहाँ पे कंडीशनल जो स्टेटमेंट है, कंडीशनल जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है उसमें आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दे दिया गया और वो देता है कि फाइंड द एरर। उसने कहते हैं ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है, फाइंड द एरर इन दिस पार्ट व्हिच इज रॉन्ग, फाइंड आउट द पार्ट। इट मींस द कंडीशन may not in past continuous tense। you should remember the condition also belongs to past indefinite tense or past perfect tense। it means this part has an error and it is wrong statement। okay, find out कि अगर उसने past continuous या past perfect continuous के साथ आपको conditional में would have या would का यूज दे दिया है, इसका मतलब है कि वो जो past continuous tense है
या जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो आपका बिल्कुल रॉन्ग है। आप उसमें बिल्कुल अनडाउटली आप उसमें एरर फाइंड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। फिर कभी कभी क्या होता है, इफ ही would have heard the news, he would have written the letter। देखिएगा इस तरीके के सेंटेंस भी पेपर में आते हैं। उसने दिया ये फर्स्ट पार्ट दे दिया, फिर ये बी कर दिया, ये सी कर दिया, ये डी कर दिया और फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। तो हमेशा क्या करना होता है कि देखिए जब भी एक सेंटेंस में दो बार मॉडल प्लस हैव का यूज होता है तो इसका मतलब उनमें से एक गलत है। We cannot use with model plus have in a sentence। ओके, अब अगर आपको ये पता है कि ये गलत है बट ये फाइंड आउट करना पड़ जाए कि इसमें रॉन्ग कौन सा है, विच इज रॉन्ग, फर्स्ट मॉडल प्लस है और सेकंड मॉडल प्लस है। इन दिस कंडीशन वी शुड रिमेंबर द रूल of conditional part and subordinate clause। You should remember that the subordinate clause always starts by if, when, after, before, until, unless, in case, as if, and this conditional part or this subordinate part always belongs to past continuous or past perfect tense। यानी कि जो भाग if, when, after, before, until, unless, as if, as soon as long as, in case, इन शब्दों से शुरू होता है वो हमेशा या तो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा या हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये पार्ट if से शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें हम मॉडल प्लस हैव का यूज नहीं कर सकते। इट मींस ये पार्ट में एरर है। अब करेक्ट कैसे करेंगे, या अगर हमें इसमें करेक्शन करना हो तो यहाँ पे हम या तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे या हम इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज कर देंगे। तो पेपर में आपको ऐसे भी मिल सकता है कि वो इसको अंडरलाइन कर देगा and he will say to you that correct this or correct fulfill the right option। तो उस कंडीशन में क्या करना है, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि अगर सेंटेंस में मॉडल प्लस हैव का यूज किया गया है, जैसे कि वुड क्या है आपका मॉडल है और उसके साथ प्लस ये हैव का यूज किया गया है, तो अगर मॉडल प्लस हैव प्रिंसिपल क्लॉज में यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में सॉरी, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ये मान लो। और अगर उसमें केवल मॉडल यूज किया गया है तो फिर आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो होना चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अगर अब यहाँ की बात है इस स्टेटमेंट में देखिए क्या है कि इसमें दिया गया है मॉडल प्लस हैव। अब मॉडल प्लस हैव के साथ क्या यूज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा इसका, इफ ही हैड। यानी कि अगर हमें ये स्टेटमेंट करेक्ट करना है, इसमें एरर फाइंड करना है या इसमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन देना है इसको कंप्लीट करने के लिए, तो फिर हम वुड हैव को रिप्लेस कर देंगे हैड से, और हैड से इसको रिप्लेस करने के बाद फिर इसका कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, हैड के साथ वुड हैव का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का जो है एग्जाम में एरर आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मेन पॉइंट वही है कि भाई अगर आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है या फिर वाज या वर्ब दिया गया है तो इनके साथ जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें हम वुड का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है प्लस हैड है उसके साथ यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसके साथ हम वुड प्लस हैव का यूज करेंगे। ओके, और एक सेंटेंस में दो बार मॉडल प्लस हैव का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा जो है हो गया, ये जो है इसमें अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी होती है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।